hj omega. So we can find out hj omega, that is called transfer function. Transfer function is just the DTFT for impulse response of the system. This is called transfer function. It is the ratio of DTFT of output signal divided by the input signal. Okay. कुछ प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं, जैसे कि सपोज हमारे को पता है x ओमेगा. लेट अस सपोज x ओमेगा इज फॉर अ गिवन सिस्टम, x ओमेगा इज गिवन एज 1 माइनस रिस्पॉन्स इनपुट है e रेस्ट पावर माइनस j ओमेगा माइनस 3 e रेस्ट पावर माइनस j 2 omega divided by 1 plus 1 by 3 people those are waiting, उनको अंदर ले लीजिए. आप में जो भी प्रेजेंटर है वो ले सकता है. माइनस j ओमेगा. Transfer function given for a discrete time system, and we need to find out its difference equation. Then how can we find out? We know that transfer function is the ratio of output signal divided by the input signal, okay, in frequency. So when we cross multiply it, we can get a expression like this: e raised to power minus j omega x omega minus 3 e raised to power minus j 2 omega x omega, ठीक है, इक्वल टू y ओमेगा प्लस 1 by 3 this. ओके. नाउ अगर इसको n डोमेन में हम कन्वर्ट करें, यानी कि टाइम डोमेन में, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो तो होगा xn. इसका इन्वर्स क्या होगा? x ऑफ n माइनस 1. क्यों? क्योंकि ये शिफ्ट हो गया. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने करी थी ना, कि अगर n में एक शिफ्ट होता है तो यहां पर उस फेस फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि इट विल बी xn माइनस x ऑफ n माइनस 1. ओके, माइनस x ऑफ n माइनस 1, क्योंकि x ऑफ n माइनस 1 का जो DTFT होगा वो ये होगा. ओके. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने करी थी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में अगर यहाँ पे 1 से शिफ्ट हो रहा है तो इससे फेज में मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिमिलरली ये होगा 3x ऑफ n माइनस 2 एंड ये हो जाएगा yn plus 1 by 3 and y of n minus 1 and 1 plus 6 y of n minus 2. So we can get the difference equation like this if we know the transformation. यानी कि transformation given है तो it is obvious कि we know the difference equation for a given system, given LTI system. Okay. ही अगर हमें difference equation पता है, जैसे कि difference equation suppose पता है yn minus y of n minus 1 equal to plus 3 by 16 y of n minus 2 equal to xn minus 1 by 2 x of n minus 1. Suppose this difference equation we know for a system and we need to find out its transfer function. Then what will we do? We will take the Fourier transform of both the sides
यानी कि वाई ओमेगा माइनस इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, माइनस जे ओमेगा वाई ऑफ ओमेगा प्लस 3/16 e raised to power minus 2 omega y of omega equal to x omega minus 1/2 e raised to power minus j omega x of omega. ये आ जाएगा. And we know that what will be the transfer function. Transfer function is ratio of output to the input. So what is output? Y omega divided by x omega. So it will be ये नीचे आ जाएगा, यानी 1 minus 1/2 e raised to power minus j omega. This will be on the numerator side, and ये वाला expression 1 minus e raised to power minus j omega plus 3/16 e raised to power minus 2 omega. This will be in the denominator side. Okay. Suppose ये discrete time system है, yn minus 5 yn minus 1 equal to xn plus 4 x of n minus 1. सपोज ये एक सिस्टम का डिफाइन करने के लिए, LTI सिस्टम को डिफाइन करने के लिए डिफरेंस इक्वेशन फॉर LTI सिस्टम, and we need to find out its transfer function. So what will be that? निकाली, आप भी निकालिए, मैं भी निकालता हूँ. सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, because we know. इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 plus 4 e raised to power minus j omega, यहाँ से आ गया, divided by 1 minus 5 e raised to power minus j omega, ये यहाँ से. Okay, so this will be the transfer function, ratio of output to the input DTFTs. Okay, now suppose we need to find out its phase response. So what will be the phase response and magnitude response? It will be magnitude function. Magnitude function क्या होगा, इनका magnitude into its phase function. phase क्या होगा, इसका phase factor. Okay, phase factor. हमेशा ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम रियल फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और एक फेज वाला फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, तो जब हम ये कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट इट्स मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स. दिस विल बी द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स एंड दिस विल बी द फेज रिस्पॉन्स. ओके, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज वी मल्टीप्लाई इट बाय मतलब मैथ्स करनी है हमें, सिंपली इस फॉर्म में लाना है मैग्नीट्यूड वर्क और फेज. तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं e रेज़्ड पावर j ओमेगा से. तो आप e रेज़्ड पावर j ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस प्लस 4 e रेज़्ड पावर j ओमेगा माइनस 5. e रेज़्ड पावर j ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, e raised to j omega is nothing but cos omega. रियल पार्ट इसका अलग कर रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर रहे हैं. j sin omega according to Euler's identity. Okay,
plus 4. Similarly, this can be written as -5. ओके, फिर इसको हम रियल पार्ट को एक साथ लिख देंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख देंगे, यानी कि 4 प्लस कॉस ओमेगा प्लस जे साइन ओमेगा, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड। सो न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर यानी 4 प्लस कॉस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ओमेगा। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही, इसका रियल पार्ट क्या होगा, कॉस ओमेगा -5 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 16 आ गया, और साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज अगेन 1, so 16 plus 1 will be 17 plus 2 cos यानी कि 2 यानी कि 8 cos ओमेगा डिवाइडेड बाय, नीचे भी ऐसे करेंगे 17 प्लस 8 साइन, क्योंकि 2 साइन है इज 2 साइन, साइन 2 इज 2 साइन है cos b, तो इधर आ जाएगा। सो दिस विल बी इट्स मैग्नीट्यूड। फेस क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट, ओके। और किसका, एच ओमेगा का, तो एच ओमेगा कहाँ है, ये है एच ओमेगा। तो इसको पहले रैशनलाइज कर लेंगे, जब रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास जो ये नीचे वाला तो चला ही जाएगा, ठीक है, तो ऊपर वाले का ही केवल आएगा डिवीजन में, वही आएगा tan इनवर्स ऑफ साइन ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 प्लस कॉस ओमेगा, ओके, माइनस tan इनवर्स ऑफ साइन ओमेगा डिवाइडेड बाय कॉस ओमेगा -5. This will be its phase response. So magnitude response will be this magnitude spectrum, and this will be the phase spectrum. Okay, this will be the magnitude spectrum, and this will be the phase spectrum for the given system whose difference equation is this. So difference equation अगर पता है तो उससे हमने एच ओमेगा निकाल लिया, एच ओमेगा पता चल गया तो उसे सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके ये आया। फिर इसको हमें, क्योंकि मैग्नीट्यूड और फेज दोनों निकालने हैं, तो मैग्नीट्यूड अलग कर लिया इसका, मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा और फेज ये हो जाएगा, ओके, ठीक है।